हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। लें जी गाइस, जैसा कि आपको पता है इंडिया में रिपब्लिक डे गुजरा है, तो हमारे व्यूवर्स काफ़ी फरमाइश कर रहे थे कि आपने एयर शो नहीं देखा। तो आज एयर हम शो वो जो एयर ऊपर वाला, हाँ एयर एयर शो एयर क्या शो आपने हाँ, वाह, वाह, वो जो क्या वही वही ऊपर ही एयर शो हवा में ही होता है। तो वो एयर फोर्स उनकी करेगी ना। हाँ हाँ, जाहिर उनकी बात है। आर्मी, उनकी एयरफोर्स, नहीं, हवा में नेवी करेगी। उनकी जो फजाइया है ना, जो फजाइया है उनकी, वही मतलब स्टंट वगैरह करेंगे, तो वो हमारे चले लगाए। Flying display. This flying display is an outcome of the focused training and Air professionalism of Force. the air and the ground crew of the Indian Air Force. The first formation onto your television screens, Arjun Formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh, Distinguished Flying Cross. Formation comprising one C-130J Super Hercules aircraft and two C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. Leading this formation is a C-130J aircraft from the Special Operations Squadron of the Indian Air Force, led today by Group Captain Rahul Rawat. The motto of the squadron, Praharati Pratihanti, translating to strike to kill. Flying it are two C-29 aircraft from 12 Squadron in victory formation, flown by Group Captain Shivam P.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. जी हाँ, जमीनी करतबों के बाद अब बारी है हवाई करतबों की। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा वायु विचरण करते हुए जब नजर आएंगे कर्तव्य पथ के ऊपर, तो आप अपनी सांसें थाम लेंगे, यकीन मानिए। सबसे पहले कुछ ही देर के बाद अर्जन फॉर्मेशन, जिसमें 2 C-295 विमान और साथ में एक C-130 एयरक्राफ्ट सुपर हरक्यूलिस के नाम से जिसे जाना जाता है, अर्जन फॉर्मेशन तैयार करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेगा। मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह के नाम पर जिसका नामकरण हुआ है। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन राहुल रावत। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन विमानों ने चंडीगढ़ से उड़ान भरी है और कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हैं। The formation flying at a speed of 350 kilometers per hour, and today it has gone airborne from Air Force Station Chandigarh. C-130J is a special operation heavy lift transport aircraft of the Indian Air Force. And now you can see the first formation, Arjun Formation, led by Group Captain Rahul Rawat. पहुंच गए। Flanking it are two C-295 aircraft, flown by Group Captain Shivam P.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. अच्छा, आवाज़ काफ़ी होगी जब ये ऊपर से ये आवाज आती है। ये देख के इतनी आवाज आ रही है जो कि लाइव कर रही है। Flying majestically up over the skies of the Kartavya Paths. And now time for the Varuna formation, comprising one PHI aircraft of the Indian Navy and two Sukhoi 30 MKI aircraft of the Indian Air Force. Leading the formation will be Group Captain Akshay Kumar Raja with Commander Ashish Vashisht flying the PHI, and the Sukhoi 30 MKI of the Indian Air Force flown by Group Captain Jeetu Yadav with Squadron Leader Tanush Malik and Wing Commander Deepak Prasad with Squadron Leader Ram Sharma. The PHI, with its unmatched long-range maritime reconnaissance and anti-submarine prowess, and the Sukhois flanking it. Formation led by Captain Akshay Kumar Raja. ये कार्गो ही होती है। हाँ, कार्गो फ्लाइट्स लाइक इसमें जो कोई भी चीज जब इन्हें ट्रांसफर करनी होती है ना इधर उधर, इसके अंदर करती है। ये सारे फाइटर जेट हैं। And now you can see Bajrang formation comprising 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one can say even the wind along the Kartavya path have stopped to stare at these Rafales. The formation led by Captain Arun Kumar. Other members of the formation, Wing Commander Jaswal Singh, Squadron Leader VB Gude, Squadron Leader A.K. Beniwal, Squadron Leader S. Masand and Squadron Leader Amol Garg, all from 101 Squadron known as the Falcons of the Chum. The squadron's motto, Anabhishya Bhedi,
seek and destroy. अच्छा ये मिड वाले जो दो हैं Only कितने for क्लोज हैं एक the दूसरे के, ऐसे लग first रहा है generation fighter उनका aircraft मतलब कि of थोड़ा सा the डिस्टेंस Indian है, ये Air बिल्कुल क्लोज है। जी आपसे कुछ ही क्षणों के बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से नजर आएंगे वज्रांग फॉर्मेशन में 6 रफेल विमान। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार। अच्छा, ये वायु लगा योद्धा लगा गर्व और शौर्य की नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण। Vajrang, led by Group Captain Arun Kumar. अच्छा इनकी आवाज ज्यादा हाँ, इनकी बड़ी बात है। स्पीड भी ज्यादा है, देखिए ना कितनी स्पीड से Marvel the गुजर रही है। choreography of power and precision. Each aircraft symbolic of the guardianship that keeps our skies sovereign and secure. And time now for a single Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the vertical maneuver over Kartavya Path. The aircraft is being flown by Group Captain Amit Gehani along with Flight Lieutenant Utkarsh Sharma of 17th Squadron known as the Golden Arrows. Their motto, Udayam Ajastram, meaning ever rising skywards. विजय फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के ऊपर से एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ अच्छा, ये अपनी full उड़ान speed भर रहे पे जा हैं रहे ग्रुप हैं। कैप्टन अमित गेहानी जोधपुर से उड़ान भर रहे हैं। Accidents हो गए हैं। The aircraft घूमेगा वो, चेक करो। इतनी Doing speed में series इसको of rolls. control Check करना, करो। stunt करना, ये महारत है। ये स्टंट है भाई। going up and up चेक करो। and finally would disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham अच्छा, ये स्टंट वाकई बहुत मुश्किल काम है भाई ये। यार स्टंट करना ठीक है, इतनी स्पीड में कि हवा के 900 अंदर। अच्छा किलोमीटर घंटे की स्पीड में फिर उसके साथ स्टंट करना वो महारत है। बेसिकली उनकी ट्रेनिंग जो होती है ना वो यही चीजें होती है कि आपने फाइट को कैसे एक मतलब कि उसको उससे सेव हो बैलेंस कैसे ठीक है, मतलब कि आप देख रहे हैं कि आपको टारगेट किया गया और आपने मूवमेंट कैसे करनी है, तो वही मूवमेंट उनको सिखाई जाती है कि कैसे टर्न करना है। अच्छा जी वो देख लो आप पहले आए हैं डिफिकल्ट है ये, हर बंदे के बस का काम है। देखिए जी ट्रेनिंग है सबसे पहले तो आर्मी की ट्रेनिंग, ऊपर से एयरफोर्स की आर्मी की ट्रेनिंग, हर चीज की ट्रेनिंग है बड़ी हाँ, ये Air यार Force है ना, सबसे इसकी पहले आर्मी कहते हैं की ना, एयरफोर्स ये की Air स्टडी Force की बड़ी training मुश्किल है। बहुत ज्यादा टफ है क्योंकि ये इनको ज्यादा ट्रेनिंग ये थी फिजाओं की, फिजाओं की। कि आपने रहना ही फिजाओं में, आपका काम ही फिजाओं में। देखो असल में जो एयर फोर्स है ना वो भी आर्मी फोर्स से ही एयर फोर्स निकाली जाती है, ठीक है, जो इनकी Air Force बेसिक की ज़्यादा भर्ती नहीं बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो होती है ट्रेनिंग हर आप देखें ना पंजाब पुलिस की लगा लें, पुलिस की भी अगर आपने करना है तो ट्रेनिंग करके ही जाना है, बिल्कुल हर ऐसे। चीज की पहले ट्रेनिंग है फिर मैं भी उसमें वही कह रहा हूँ उनको ना, सिखाया जाता है ना उधर कि पूरा। इनकी भर्ती अलग-अलग होती है। हर चीज की अलग होती है। आर्मी की अलग भर्ती आती है, एयर कोटा फोर्स की अलग अलग होगा। होगी, नेवी की अलग होगी, तो डेफिनेटली अलग जब अपना अच्छा वो डिपार्टमेंट जो से लेते हैं तो उन्होंने राफेल दिखाया ना, राफेल नो डाउट कि मोस्ट एक्सपेंसिव जो कि उनके वो प्लेन्स हैं, ठीक है, और स्पेशली वो जंगों ये- वगैरह में ही यूज किए ये जाते हैं, फ्रांस के ठीक हैं। है, ये है ही लड़ाका तैयार है और सारे। ये इतने एक्सपेंसिव हैं इसके मुकाबले में इसका- इंडिया ने अपना बनाया बनाए, अब तेजस, बनाए, अब तेजस, बनाए, अब हाँ, बनाए। तेजस। इसका जो हेलमेट है ना, हेलमेट जो बार बार दिखाया जा रहा था, उस वो हेलमेट ही इतना एक्सपेंसिव है कि वो स्पेशली पहले आपने जो भी उसको ड्राइव करने वाला है ना उसका आपने पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देना है उनको, उस हिसाब से उस जो हेलमेट को ना डिजाइन किया जाए। अच्छा हाँ मॉडिफाई वैसे किया हर जाता कोई होगा यूज ना। नहीं कर सकता उस अच्छा फिर हेलमेट ये को, ऐसे होता होगा हर किसी का अलग अलग प्लेन हर कोई जो उसको फ्लाइंग करना जा रहा है ना, जिसके एडजस्ट पे है हेलमेट उसके एडजस्ट किया हुआ है ऊपर कोड वही लिखे उसको हुए फ्लाई हैं। कर सकता नहीं, है, कोड लिखे अदर वन हुए कोई हैं। फ्लाई नहीं कर सकता है। कोड अपने होंगे ना हर बंदे का। और बताया जाता था, मैं स्टडी किया था तो कह रहे हैं कि जो राफेल है जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना तो इसका हेलमेट मोस्ट एक्सपेंसिव बनाया जाता है, जाहिर सी बात है उसके जरिए तो सारा ये कंट्रोल करता सारा है। कंट्रोल करता सारा है, कंट्रोल उसी के उसका जरिए। हेलमेट पूरा इसको राफेल को कंट्रोल करता है। उसके जरिए इनको सांस आ रहा है, सब बिल्कुल। कुछ उसके ये जरिए बात हो हो रहा है। खुद कि इंडिया का जो रिपब्लिक डे है ना वो देखने का मजा आता है, इसके लाइव देखने का अपना मजा है यार। हम ये वीडियो देखते में देख के हाँ। मजा आता है, बोर नहीं होता क्योंकि इंसान देख रहे हैं लेकिन वो चले। Live मजा आता है। जब कभी हालात अच्छे होंगे तो हम दिल्ली जाएंगे यार देखने। तो आपको नहीं खुलेंगे जाने तो जाएंगे देंगे, आपको जाने नहीं देंगे, यार मैंने कहा हालात अच्छे होंगे, आपको बॉर्डर पे रोक लेंगे। आपको नहीं जाना। हालात आखिर कभी ना कभार अच्छे हो आएंगे कहते यार। हैं कि हालात अच्छे हो, शक्ल कहते हैं बहुत मैटर करती है। अच्छा ये मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ मैं सही बात है, उसको बात कर पता रहा हूँ।
शक्ल चोरों जैसी हाँ शक्ल। उसको पता है मैं तो जा सकता हूँ, ये तो नहीं जा सकते ना। देखिए जी, जब हालात ठीक होंगे तब सभी जा सकते हैं, बिल्कुल। शक्लें मैटर नहीं करेंगी। नहीं करती हैं। चले जी, बाकी हम मजाक की एयर बात शो की बात करते हैं गाइस। बहुत ही टॉप का। जबरदस्त और कमाल कमाल है। स्टैंड था ना, वो सबसे डिफिकल्ट और डिफरेंट है। वो बिल्कुल घूम गया अंदर, मतलब और clouds में सबसे चला बड़ी गया, बात नजर है नहीं आ रहा। वो उसकी स्पीड देखें कितनी ज्यादा थी 900 पर आवर। कि 1 घंटे में 900 किलोमीटर, यहाँ से लाहौर होगा 900 किलोमीटर। यार आप लगा लो करीब नहीं जी, तो कम है। लाहौर से भी है। आगे। लाहौर से कराची का जो ट्रैवल है ना वो आई थिंक 1200 1300 किलोमीटर 1300 किलोमीटर ज्यादा इतना की है। तो 1 घंटे 10 एक 15 घंटे मिनट में पहुंच जाएगा। लाहौर से कराची 1 घंटा 10 मिनट। हाँ 1 घंटा 10 मिनट पहुंच जाएगा। इधर से कराची लगा लो कि अगर 500 किलोमीटर या 700 किलोमीटर बनता है तो 30 आधे मिनट में घंटे में 35 मिनट में होता है। तो भाई ये आप ऐसे देख रहे हैं, ये ऐसे तो गुजर जाएगा। ऐसी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, पता ही वो नहीं चलेगा। जितनी ऑडियंस बैठी देख रही है ना, वो ऐसी देख रही है कि ये कहाँ है। बिल्कुल गुम हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्लाई ऐसे कर रहा है ना तो वो घूम जाता है। जैसे ही उसने वो मतलब कि नीचे को मूव किया है ना, वो बिल्कुल ही गायब हो गया। बिल्कुल। नहीं जी गाइस, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।